خواتین کی علمی، فکری اور روحانی تحریریں اب صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہے صالحات امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ سہمائی رسالہ صالحات، عنوان مردانگی، تحریر نعیم بلوچ۔ یہ کہانی ایک وکیل کی سچی داستان سے ماخوذ ہے۔ اسے پہلی دفعہ مردانگی کے حقیقی مفہوم سے آشنائی ہوئی تھی، ایک ایسی حقیقت جس سے ان گنت مرد ناآشنا ہیں، ایک عورت کی ایسی داستان جسے ہر مرد کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اس کے شعور کا حصہ بن سکے۔ عدالت کے احاطے میں موسم ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، بے رحم، بے چہرہ اور خاموش۔ اس دن بھی سورج پوری قوت سے چمک رہا تھا، لیکن عدالت کی دیواروں کے بیچ سایہ صرف انسانوں کے وجود کا نہیں، ان کے زخموں کا بھی تھا۔ میں کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو وہ دونوں پہلے سے موجود تھے۔ مرد خاموش، سر جھکائے، کمرے کے فرش کو تجریدی آرٹ سمجھ کر اس سے کوئی مفہوم اخذ کرنا چاہ رہا تھا۔ شاید وہ ان زخموں کے سائے سے پریشان تھا جو اسے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے تحت الشعور میں موجود تھے۔ عورت بظاہر پرسکون، لیکن نگاہ میں ایک عجیب الجھاؤ تھا، ان گنت پہیلیوں اور بے اندازہ الجھنوں کا ٹھہراؤ۔ اس کے دو ننھے بچے عدالتی کرسیوں پر بیٹھے معصوم نظروں سے ادھر ادھر جھانک رہے تھے۔ جج صاحب کے چہرے پر سوال تھا اور فائل میں سے بس ایک لفظ، خلا۔ جج صاحب یقیناً فائل کا مطالعہ کر چکے تھے، مقدمے کی حقیقت کو شاید سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولے، کیس کی نوعیت سنجیدہ ہے، بہتر ہوگا کہ میاں بیوی چیمبر میں آ کر کچھ دیر گفتگو کریں، شاید بات بن جائے۔ مجھے جیسے زندگی کی ڈوبتی نبض میں نئی سانس محسوس ہوئی۔ بحیثیت وکیل میں نے مقدمہ لے تو لیا تھا، لیکن اب تک کی جانکاری سے مجھے شدید خدشہ تھا کہ میں اس مقدمے میں ہار کی دہلیز پر کھڑا ہوں۔ چیمبر میں گفت و شنید کا موقع گویا وقت نے بخش دیا تھا۔ ہم تینوں چیمبر میں آ بیٹھے۔ مرد خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کوئی انکہی تحریر لکھی تھی۔ عورت نے ساڑی کے پلو کو سنبھالا اور باوقار انداز میں بیٹھ گئی۔ مجھے تسلیم ہے کہ میں جو چہرے کے تاثرات کو پڑھنے میں باکمال سمجھا جاتا ہوں، اس چہرے پر کچھ نہ پڑھ سکا۔ عجیب اجنبی زبان لکھی تھی اس کے چہرے پر۔ میں نے سوال کیا، بی بی وجہ بتائیں، یہ خلا کیوں؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ شخص مرد ہی نہیں ہے۔ لفظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا اور مجھے لگا جیسے کوئی کانچ کا گلدان فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا ہو۔ میرے اندر کا وکیل لمحہ بھر کے لیے رک گیا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ مگر آپ کے دو بچے ہیں، پھر یہ الزام کیسے؟ مجھے اصرار ہے اپنے لفظوں پر۔ اس کے باپ بننے کے بعد ہی مجھے یقین ہوا کہ اس میں مردانگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے تیکھا لہجہ اپنایا۔ کمزوری کی وضاحت کریں گی محترمہ؟ اس نے گہری سانس لی، پلکیں جھپکائیں، پھر گویا وقت کی گرد جھاڑ کر بولی، صرف بچے پیدا کرنا ہی مردانگی نہیں ہوتی وکیل صاحب۔ میں اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ اب میرے اندر کے وکیل پر ایک مرد کا قبضہ ہو چکا تھا۔ میرے منہ سے ایک گندی سی گالی نکلتے نکلتے رہ گئی، البتہ منہ میں تو دے ہی ڈالی، اور میرے احساس نے اسے سنا بھی۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گویا منت سماجت کرنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے، دو بچوں کی ماں ہو کر بھی اپنے شوہر کو نامرد کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور پورا وکیل بن کر تیز تیز سوال کرنا شروع کر دی۔ کیا تمہارا اپنے شوہر سے گزارا نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ دو بچے ہیں ہمارے، یہ جسمانی طور پر تو بالکل ٹھیک ہے، مگر پھر بھی یہ نامرد ہے۔ مجھے اس کی بات سے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بچے بھی ہیں اور نامرد بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب عورت ہے۔ تو بی بی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ میں نے ضد چھوڑنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وکیل صاحب، صرف ازدواجی زندگی سے اولاد ہو جائے یہی مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی ایسی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، جس پر بیوی مرد سے مطمئن نہیں ہو پاتی اور مرد نامرد ہی قرار پاتا ہے۔ مجھے اس عورت کی منطق کسی طرح بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے اندر کا مرد شدید الجھن کا شکار تھا کہ بھائی فقط مطمئن نہ ہونے پر کس طرح سے اپنے مرد کی عزت یوں کورٹ کچہری میں اچھال رہی ہے۔ یہ معاملہ تو ان دونوں کے مابین بھی حل ہو سکتا تھا۔
मैंने नजर उठाकर उसके शौहर को देखा। मुझे साफ लगा कि उसके चेहरे पर अपना सच खुल जाने का शदीद खौफ लाहक था। आपको अगर खुदा ने औलाद से नवाज रखा है बीबी, और अगर ये जिस्मानी तौर पर भी ठीक है, तो अगर आपको इन सब के बावजूद किसी मसले और बेचैनी का सामना है तो आप डॉक्टर से राब्ता कर सकती थी। यूं कोर्ट कचहरी आना तो इस मामले का हल ना था। इनकी कमजोरी किसी भी डॉक्टर से दूर नहीं हो सकती थी वकील साहब। तभी मुझे ये राह चुननी पड़ी। अजब औरत थी, एक तो इंतहा की बेबाकी, ऊपर से कमाल का एतमाद, और वजह ऐसी कि कोई और होता तो शर्म से डूब कर मर जाता। जाने ही कैसी औरत थी, इसका हुलिया इसकी बातों से जरा ना मिलता था। मगर हर किसी के माथे पर थोड़ा ही लिखा होता है कि वो अंदर से कैसा है। मेरे अंदर का मर्द इस औरत पर तरह तरह के जुमले कस रहा था, मगर अपने वकील होने का भरम भी रखना था। बोला, बीबी हर मसले का हल होता है। मैंने जरा तवक्कुफ किया। मुझे अब इस औरत पर गुस्सा आने लगा था और उसके शौहर पर तरस। मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर का पता देता हूँ, आप वहां जाएं, सब बेहतर होगा। जिहालत और जिद में आकर घर ना तोड़े। मैंने अपने गुस्से पर बमुश्किल काबू पाया और एक जानने वाले काबिल डॉक्टर का एड्रेस देने का सोचा, जो मर्दाना कमजोरी का माहिर माना जाता था। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करके इस जाहिल औरत को इस इकदाम से रोकना चाहता था। नहीं वकील साहब, मुझे यकीन है इनका मर्ज ला इलाज है। मैं इस दौर में ऐसे मर्द के साथ एक मिनट नहीं रहूंगी। वो बजिद रही। मुझे भी अब जिद हो गई थी कि जरा इसकी असलियत सबके सामने लाऊं। बोला, जब आपकी औलाद है तो फिर ये बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं होगी। लगता है आप सब कुछ अपने शौहर को बदनाम करने की वजह से कर रही हैं। अब की बार मेरा जब जवाब देने लगा था। बीमारी है वकील साहब, बीमारी है। अब की बार वो खासे तल्ख और ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। अगर है तो वजाहत कर दें फिर। मैं भी मुसिर था कि वो लफ्ज़न अपनी बेशर्मी और बेबाकी का इजहार करे, मगर जब वो बोली तो मैं हैरत और खजालत के समंदर में डूबने लगा। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही मर्दानगी नहीं होती वकील साहब। मेरे बाबा उस्ताद थे एक स्कूल में, देहात में रहते थे मरहूम, और पूरा गांव कहता कि उन जैसा बारोब और खूबसूरत मर्द कभी नहीं देखा। माशाल्लाह बड़े कद काट के, बा अखलाक और इंतहाई मदद करने वाले इंसान थे। हमेशा दूसरों की बहू बेटियों के सर पर हाथ रखा। हम 3 बहनें हैं और मेरे वालिद ने हमें हमेशा बेटा कहकर बुलाया। हमें अपनी शहजादियां कहते, जबकि मेरे शौहर मुझे खबीस औरत कहकर बुलाते हैं, हकीर और नापाक जानवरों की मादाएं कहकर बुलाते हैं। मैं यहाँ उनका नाम लेना भी गवारा नहीं कर सकती। ये कौन सी मर्दाना सिफत है वकील साहब? अब बताएं, मर्द मेरे बाप जैसा शख्स हुआ या ये खबीस और हकीर जानवर कहने वाला? माहौल में एकदम एक गंभीर खामोशी छा गई। लगता था जैसे कोई बम फट गया हो, जानदार कोई ना बचा हो और अब खामोशी हो गई हो। उसकी आवाज फिर बुलंद हुई। मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे मैके को गलीज गालियां देते हैं। उनके मुख्तलिफ जानवरों से ताल्लुक बयान करते हैं। अपने नाजायज ताल्लुक की ख्वाहिश का दांत पीस पीस कर, मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर इजहार करते हैं। आप ही बताएं जी कि इसमें मेरे माँ बाप का क्या कसूर? शायद यही कि उन्होंने इन्हें अपना अजीज जानकर मेरा हाथ इन्हें थमाया, मगर उन्होंने इन्हें मर्द जाना था। मगर ये क्या ये मर्दानगी दिखाई इन्होंने? जब किसी के मुंह से कुछ ना निकल सका तो वो फिर बोली, वकील साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और ये गुस्से में मुझे पेशावर औरत, और ये खिताब अपनी बीवी को देते हैं। क्या बतौर शौहर ये इनकी मर्दानगी के मुताबिक है? वकील साहब, मर्द तो वो होता है ना जो पेशावर औरत को भी इतनी इज्जत दे कि वो पेशा करना छोड़ दे, और ये अपनी ही बीवी और फिर उसकी माँ को ही पेशावर कहकर पुकारते हैं। और ये लफ्ज तो मैं बोल रही हूँ, इनसे पूछें इनकी मर्दानगी इन्हें इस लफ्ज के बजाय कौन सा लफ्ज बोलने पर मजबूर करती है। वकील साहब, अब आप ही बताएं ना, क्या इनका ये तर्ज तखातुब मर्दानगी पर पूरा उतरता है या इंतहाई दर्जे की कमजोरी पर? और ये तो सिर्फ बदजबानी है। इसके अलावा ये बात बात पर जो बेइज्जती और डांट डपट करते हैं, मेरी शख्सियत, मेरी रूह को लहूलुहान करते हैं, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्या इस कमजोरी का इलाज कोई डॉक्टर कर सकता है? मेरा तो सर शर्म से झुक गया था। उसका शौहर भी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। मेरी सोच को वो औरत वाकई सच साबित कर गई थी कि जरूरी नहीं जैसा बातिन हो
वैसा ही जाहिर भी। मेरे शौहर के नजदीक मर्दानगी का सबूत गालम गलोच, बदतमीजी और बदअतवारी है। मैं गंग बैठा था। लफ्ज नामर्द अब जिस्मानी नहीं अखलाकी मफहूम इख्तियार कर चुका था। बतौर मर्द मैं इस पहलू पर गौर ही नहीं कर सका कि मर्दानगी का एक ही रूप नहीं होता। जिस्मानी बेमर्दमी का इलाज मुमकिन है, लेकिन रूह की बेमर्दमी वाकई लाइलाज है। मैंने शौहर की तरफ देखा। चेहरे पर शदीद कर्ब, आंखों में वहशत और जबान पर कुफ्ल। मुझे किसी आरिफ की बात याद आ गई। बदजबान बहुत बुज़दिल होता है, वरना वो बदजबानी का सहारा न ले। लेकिन मैं वकील था, अभी नहीं हारा था। बोला, बीबी आपने कभी कोशिश नहीं की इसे समझाने की? कोशिश? जब अनगिनत दफा नाकाम हुई तो मैंने खुद को उसके गुस्से के नीचे दफन कर दिया। सोचा वक्त बदल जाएगा। मगर जब इसने मेरी बेटी के सामने बदजबानी की तो मेरी बेटी ने मुझसे इन गालियों का मतलब पूछा जो मुझे ये दे रहा था। बस यही वो लम्हा था जब बर्दाश्त और इंतजार दोनों खत्म हो गए। मेरे अंदर की औरत जो मर गई वो माँ बनकर जाग उठी। अचानक उसका शौहर बोल उठा। उसकी आवाज में लर्जिश थी। अगर यही बात थी तो पहले बता देती। मुझे इस तरह सबके सामने रुस्वा करने की क्या जरूरत थी? वो हंसी, मगर उस हंसी में दुख की हिचकी साफ महसूस हो रही थी। आपकी जबान ने मेरे वजूद को रोज रुस्वा किया, मेरी रूह तक को जख्माया, और आपको एक समात की रुस्वाई नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। वो एक औरत बोल रही थी, मगर उसकी आवाज में हमारे समाज की कई औरतों की सदाएं थी। खातून ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, बच्चों की तरफ देखा और फिर उस मर्द की तरफ जिसने उसकी इज्जत को बार बार रौंदा था। शायद उसे उम्मीद की एक धुंधली लकीर नजर आई। वकील साहब, अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप मेरे शौहर का मुकदमा लड़ते? मेरे तखय्युल ने मेरी 15 बरस की बेटी को दुल्हन बना दिया। फिर मुझे वो रोती हुई नजर आई। मुझे मालूम था कि मौजूदा कानून के मुताबिक खुला का मतलब तलाक़ बाइन होता है। इसलिए आमतौर पर जज हजरात खुला के हक में फैसला देने से हिचकिचाते हैं। मगर आज मुझे पहली दफा इस कानून में सुकून नजर आया। ये अजीब था कि मर्द तलाक दे तो उसे तलाक़ बाइन और तलाक़ रजई दोनों का हक है, लेकिन औरत खुला ले तो उसे यह हक हासिल नहीं। उसका खुला तलाक़ बाइन क्यों समझा जाए? वो एक तलाक क्यों ना तसव्वुर किया जाए? क्या खुला की जुर्रत करना असल में मर्द की मर्दानगी के खिलाफ है? मुझे पहली दफा शरीयत में भी बेइंसाफी नजर आई। मैं सोचने लगा, ये खुदा की शरीयत के मुताबिक नहीं हो सकता। खुदा जालिम नहीं हो सकता, इसीलिए वो ना मर्द है ना औरत, वो दोनों के तासुबात से पाक है। मगर ये कानून तो मर्दानगी का बेहंगम शाहकार है। इसीलिए मर्द हमेशा हमेशा के लिए औरत पर अपना दरवाजा बंद कर देता है। सच्ची बात है कि मैं और मेरी सारी मर्दानगी आज खुद इंसाफ के कटहरे में खड़ी थी और मेरी जबान को ताला लग गया। मुझे गंग देखकर वो बेबाक औरत जज से मुखातिब हुई। सर, मुझे वो फैसला सुनाइएगा जो इस जैसी सूरत हाल में आपकी बेटी को भी काबिल कबूल हो। ये बात आम हालात में वाज़ेह तौर पर किसी जज के प्रोटोकॉल के खिलाफ थी। मैंने उनकी आंखों में अजीब गैज़ो गज़ब देखा था। वो उठ खड़े हुए और ये इशारा था कि हमें अब उनके अगले हुक्म का इंतजार करना होगा। मैं जब चैम्बर से निकल रहा था तो सोच रहा कि गालियां तो मैंने भी इस खातून को इसके पहले बयान पर दिल ही दिल में बहुत दी थी। शायद मैं भी नामर्द हूँ और शायद हमारा माशरा नामर्दों से भरा पड़ा है। औरत अपने अरमानों का सेहरा मर्द के सर पर बांध कर और उसकी मर्दानगी से तवक्को रखती है कि वो उसका मान नहीं तोड़ेगा। मैं ये सब कुछ सोचता रहा। मुझे लगा कि शायद जैसे हम सब नामर्द हैं, क्योंकि मर्दानगी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बच्चे पैदा करना ही नहीं, बल्कि तहजीब, बर्दाश्त और शाइस्तगी भी है। मुझे मालूम था कि इस केस का जज साहब क्या फैसला देंगे, यकीनन खुला, हमेशा की अलहदगी। मगर मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए। फैसला अजीब था। मुल्जिम पर दावा साबित हो चुका है, वो बीमार है, बीवी बच्चों के साथ रहने के नाकाबिल। इसका घर इसके सेहत याब होने तक इसके बीवी बच्चों के पास रहेगा। इस बात का फैसला उसकी बीवी ही करेगी कि उसकी मर्दानगी वापस आ चुकी है या नहीं।